Hi everyone, welcome back to Biogyan. I'm Smriti Pragya and we are continuing photosynthesis. Okay, so already we have completed 2 classes. I would recommend you to go and watch those 2 classes so that there will be a flow. Okay, so in our previous video we have already completed the introduction part, like who are the key players of this photosynthesis reaction. So in today's class we will be dealing about what is light reaction and types of light reaction, and basically we will focus on non-cyclic reaction and the players of your non-cyclic reaction. Okay, so without further delay, let's begin. Photosynthesis. You know what photosynthesis is, right? So photosynthesis is divided into 2 parts. One is your light reaction and another one is your dark reaction. So by the name you can think that a light reaction must be light is needed, and dark reaction like we don't need light. Okay, but no, that's not true. In light reaction we need light. Okay, that's perfectly fine. But in dark reaction it's not like we don't need light. It's the indirect involvement of light. Okay, few amount of light is required, not the directly we can't use the light, but the indirect light is involved. We will be discussing about this dark reaction in details in our next videos, but today we will be focusing on the light reaction and specifically on non-cyclic reaction. So this light reaction is again subdivided into your non-cyclic reaction and cyclic reaction. Okay, so let's first know about what is this light reaction. So it occurs in grana. So in my previous video, I have told you what is grana, where it's situated. Okay, I have already discussed those parts. So if you haven't watched this video, I would recommend to please go to the previous video and learn. Okay, so light reaction is also known as Hill's reaction. So this is the scientist who discovered this reaction, and it's direct light involved in this light reaction, as I told earlier. Basically, light reaction is your flow of electron. Okay, like in your animal cells, in your cell biology, in biochemistry, you have learned about electron transport system. That occurs in mitochondria. So it generates ATP and oxygen. Okay, so like that, chloroplast also conduct a electron transport system like mitochondria. So this is your light reaction, specifically your non-cyclic reaction. Okay, we will know about how the electron transport and how the ATP produced in this video only, but in next slides. Okay. So both photosystem 2 and photosystem 1 are involved in this reaction. So as I told earlier, so these photosystem 1 and photosystem 2, these two are the key player. Okay, they are present in your reaction center of your chlorophyll. Chlorophyll is your green pigment, right? So this light reaction occurs in the presence of your light. Obvious thing, as the name suggests, light reaction. So light will be required. Okay. So this is all about a brief introduction about your light reaction. So as I say, light reaction is divided into 2 parts. Okay, non-cyclic and cyclic reaction. So our non-cyclic reaction, it occurs in both our appraised and non-appraised membrane. So in the previous slide, I told that a light reaction occurs inside the grana. So in the grana, what I told you, like this, like a structure, like a stack of coin, like this. So this is your appraised membrane and the sides are your non-appraised membrane. Okay. So this non-cyclic reaction occur in both appraised and non-appraised region. Cause you may ask why. Okay, because in this non-cyclic reaction now both photosystem 2 and photosystem 1, okay, both play a crucial role, and photosystem 1 is present in our non-appraised and appraised region. So both this cycle occurs in our both appraised and non-appraised region. So in the end of this cycle now we get 3 ATP, 2 NADP and 1 oxygen. Okay, so see, I have already mentioned that here key photosystem 2 and photosystem 1 both are involved, and this cycle is also known as your zigzag model or your jet scheme. Okay, understood? Moving forward, let's know first know who are the key players of this light reaction. What we covered, what is light reaction, what is your non-cyclic reaction. Now we are going to discuss who are the key players of this reaction, and then we will be dealing with the light reaction completely. Okay,
Here now it's not like the whole definition, it's just short notes, or you can say short for key points about these players. Okay, so first player is your photosystem 2 or PS2. It's present in the Apres region and the first electron donor. You have to remember this point, that photosystem 2 is your first electron donor and pheophytin is your first electron acceptor. What are these roles, where these things are present? Okay, already I have told you in the previous video, but don't worry, in the next slide now I am going to cover all these things, like what are these work and how these things work. Okay, so nothing to worry about it. Then plastoquinone. Plastoquinone undergo 5 reduction process. So what are reduction process? Like what is reduction? It's gain of electron, right? So plastoquinone B, it receives extra 2 hydrogen atoms from stroma and become fully reduced. Cytochrome B6F complex, it's a large immobile complex that separates photosystem 1 and photosystem 2. Then plastocyanine, water soluble. Okay, so what does this mean by water soluble? So reading this statement, what comes to your mind? Exactly. So it must be present inside the lumen. Okay, not in the transmembrane, right? Not in that thylakoid membrane layer. Clear? Water soluble means water loving, okay, or hydrophilic. So it must be present inside a fluid media. So your lumen is your fluid media there, no? Got it? Then photosystem 1, we called it quantosome, which receives 700 nanometer light, present in both appraised and non-appraised region. I have already told this. And remember one thing, photosystem 2 receives 680 nanometer light. Okay. Then A0, A1, and these proteins. Okay, these are proteins molecules, and they are also plays the role of electron acceptor in the non-cyclic reaction of photosynthesis. And then ferredoxin, it's also a electron acceptor. Okay, and FNR. FNR what? It is a ferredoxin NADPH reductase. So it's an enzyme which will generate NADP from NADPH. Okay. And ATP synthetase. From the name synthetase, reductase, you get an idea that these are all enzymes, right? Which will generate ATP. Not all the enzymes generate ATP. These ATP synthetase will generate ATP here. Okay. So these are your players of your non-cyclic reaction. Okay. So here you can see this is the whole schematic representation of your non-cyclic reaction. So see, you can take a snapshot here of these players. So what will happen, or you can just pause the video and just go through those names. Okay, about these names, suppose photosystem 2, pheophytin, etc, etc. So what will happen now when I will be teaching you this whole schematic representation of your non-cyclic reaction, so you won't get confused कि plastocyanin क्या था, photosystem 2 क्या था. So I will suggest just pause the video or take a snapshot and just for 2 to 3 minutes just read those things. Okay. Begin with our non-cyclic reaction, like how the electron transferred and how the ATP generates. Okay. So here you can see it's not it's a schematic representation. So I have put the things in such a way that it would be easier for you to remember. So what I told earlier कि non-cyclic reaction को हमारा zigzag model और Z-skin reaction भी बोलते हैं. क्यों? अगर आप ना ऐसे रोटेट करके देखोगे अपने डिवाइस को, आप जिस भी डिवाइस में देख रहे होगे, तो आपको एक इंग्लिश का लेटर ना Z के जैसे दिखेगा. सी नॉट लाइक एग्जैक्ट Z, बट है उसका मतलब अपीयरेंस कुछ Z के जैसा है. और ये सब कैसे बना और ऐसा क्यों है, अभी हम उसको पढ़ेंगे. ठीक है, ये है हमारा फोटोसिस्टम 2. फोटोसिस्टम 2 हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है. यहाँ है हमारा, ये है हमारा स्ट्रोमा, ये है हमारा ल्यूमेन, ये एरिया ल्यूमेन है, ये हमारा स्ट्रोमा है. और ये जो दिख रहा है ना, ये जो 2 लाइन जिसके अंदर ये सारे कलरफुल चीजें प्रेजेंट है, तो वो है हमारा थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन. ठीक है, हमारे इस थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में ही ये सब प्रोसेसेस होते हैं. ठीक है, तो ये तो है हमारा मेम्ब्रेन. मतलब ये जो सब प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, जो मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स है, ये सब क्या होंगे? हाइड्रोफोबिक इन नेचर होंगे. और जो हमारे यहाँ पे है, जो हमारे ल्यूमेन में है, वो सब क्या होंगे? हाइड्रोफिलिक इन नेचर. क्योंकि हमारा ल्यूमेन में क्या है? वाटर और
सॉल्व। ठीक है, जब लाइट गिरता है ना फोटोसिस्टम 2 पे तो क्या होता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन हमने पढ़ा था हमारे पिछले वीडियो में। तो लाइट जब गिरता है ऐसे ही क्या मतलब जो भी मन करेगा वो लाइट गिर जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। हमारा 680 नैनोमीटर का लाइट गिरता है हमारे फोटोसिस्टम 2 पे, जो कि है हमारा रेड लाइट। ठीक है, हमने पढ़ा था कि क्यों रेड लाइट गिरता है, क्योंकि रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस अच्छी होती है, वो सब एक्सपेरिमेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अभी हम क्या जानेंगे कि ये जो है लाइट 680 नैनोमीटर का वो गिरता है फोटोसिस्टम 2 पे। तो जब ये फोटोसिस्टम 2 पे ये लाइट गिरता है तो क्या होता है, ये देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना वो निकल जाते हैं फोटोसिंथेसिस 2 से। फोटोसिंथेसिस 2 से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल के ये किसके पास आ जाते हैं, हमारे फियोफाइटिन के पास। तो ऐसा नहीं कि फियोफाइटिन में आए और फिर चले गए, फिर आए फिर चले गए, नहीं, कुछ टाइम पीरियड के लिए ना ये फियोफाइटिन में रहते हैं, मतलब जब तक फियोफाइटिन अपने पास रख सकेगा फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम वो फियोफाइटिन में रहते हैं। ओके, देन ना ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे फियोफाइटिन से जाते हैं प्लास्टोक्विनोन ए पे, और फिर प्लास्टोक्विनोन ए से ये 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्लास्टोक्विनोन बी के पास। तो बी क्या होता है ना, वो एक ऐसा कंपाउंड है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को लेके आगे नहीं बढ़ सकता, तो उसको ना कुछ प्रोटॉन्स चाहिए। तो वो प्रोटॉन कहाँ से लाता है, वो स्ट्रोमा में लाता है। जब वो स्ट्रोमा से वो तो प्रोटॉन ले आता है तब क्या होता है, स्ट्रोमा में H+ आयन कम हो जाता है। एज H+ आयन कम हो रहा है, पीएच क्या होगा, स्ट्रोमा का पीएच बढ़ेगा। तो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है H+ आयन, ऐसा नहीं है कि कुछ एक अलग मैकेनिज्म ही है H+ आयन लाने का, नहीं, H+ आयन हमारे सिस्टम में बहुत सारा प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है कि वो जो दो H+ आयन वो ले आता है, जब वो ले आता है ना वो फुल्ली रिड्यूस फॉर्म में चला जाता है। तो जब क्या प्लास्टोक्विनोन ए से प्लास्टोक्विनोन बी तक होने का सफर और फिर प्लास्टोक्विनोन बी से प्लास्टोक्विनोन ए से होने का सफर, ये ना एक 5 स्टेप प्रोसेस है। आपका जो ETS है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसमें आपका एक क्यू साइकिल होगा, आपको याद होगा QH2 एग्जैक्टली। अगर याद भी नहीं है तो आई विल कवर दैट आल्सो, नथिंग टू वरी। तो एग्जैक्टली वैसे ही चलता है ये साइकिल। यहाँ पे 5 स्टेप होते हैं। देखो ये है एक स्टेप, फियोफाइटिन से गया इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन ए के पास, ये है पहला स्टेप। प्लास्टोक्विनोन ए से गया प्लास्टोक्विनोन BH2 के पास, ये है दूसरा स्टेप। प्लास्टोक्विनोन BH2 जाता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास, वहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ठीक है, ये है हमारा तीसरा स्टेप। फिर प्लास्टोक्विनोन BH से प्लास्टोक्विनोन QA बनता है, फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ठीक है, ये है हमारा 4th स्टेप। फिर ये प्लास्टोक्विनोन A वापस से चला आता है अपने पोजीशन पे, फिर से ये क्यूफाइटिन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो ये क्या हुआ, 5th पोजीशन। सो हमने जो पढ़ा था यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे, प्लेयर्स ऑफ हमारे प्लेयर्स में प्लास्टोक्विनोन में अंडरगो 5 स्टेप रिडक्शन प्रोसेस। आप समझे कैसे हुआ 5 स्टेप रिडक्शन प्रोसेस। और प्लास्टोक्विनोन बी क्या करता है, वो 2 प्रोटॉन रिसीव करता है हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन द सेंस ऑफ स्ट्रोमा। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि बस 2 ही इलेक्ट्रॉन था और 2 ही इलेक्ट्रॉन चला गया, तो फिर फोटोसिस्टम 2 तो ऐसे खाली बैठ जाएगा ना, लाइट तो गिर रहा है। तो क्या होता है, फोटोसिस्टम 2 ऐसे ही खाली बैठता है या फिर कुछ और प्रोसेसेस होते हैं। तब आता है हमारा विजर्ड, आप इसको विजर्ड भी कह सकते हो, WOEC। मतलब ऐसा उसका नाम विजर्ड नहीं है, मैं बस फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोल रही हूँ। WOEC क्या है, वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो हमने पढ़ा था कि ये क्या करता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ता है जिससे वो 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाता है, 4 प्रोटॉन्स बनाता है और एक ऑक्सीजन बनाता है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको लेता है हमारा टायरोसिन Z। ठीक है, टायरोसिन Z लेता है। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे एज के फॉर्म में नहीं जाते। आप इस देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जाता है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जाता है। ये बातें आप याद रख लो। ठीक है, जब यहाँ एक साइकिल में हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन गए, फिर से ये एंटर कर गया साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पे। उसके बाद क्या होता है, ये जो WOEC है ना वो वाटर को तोड़ देता है, हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है। फिर वो इलेक्ट्रॉन टायरोसिन Z के थ्रू फिर से जाता है फोटोसिस्टम 2 में, फिर से फोटोसिस्टम 2 इसको फियोफाइटिन में भेजता है और ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, ये आप समझे कि क्या हो रहा है इस मोल हाफ में। तो हम अभी मूव करते हैं इस पिंक कलर स्ट्रक्चर पे। इसको कहते हैं हम साइटोक्रोम
B6F कॉम्प्लेक्स। तो ये ना एक लार्ज सब यूनिट है, ठीक है, जो कि दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा क्या है, साइटोक्रोम B6 और दूसरा हिस्सा है साइटोक्रोम B8। ये दो हिस्सों में डिवाइड है। ऐसा नहीं कि ये एक टाइम में यहाँ पे है, दूसरे टाइम में यहाँ चला जाएगा, नो, ये यहाँ पे फिक्स है, ये इमोबाइल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये हिलता डुलता नहीं है, ये उसी जगह पे फिक्स है। और हमारा फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 ये दोनों को वो सेपरेट करता है, कौन ना, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो हमारा प्लास्टोक्विनोन BH2 है, ये आया हमारा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास। जब वो आया तो उसके पास ये जो दो इलेक्ट्रॉन आए थे, टोटल 4, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहले तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, फिर बाद में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो फिर गया हमारा प्लास्टोसियानिन के। आप अभी मत सोचो कि ये 4H क्या है, यहाँ पे 4H क्या है, ये सब क्या है, मैं इस पे आऊंगी, पर पहले अभी ये देखो कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना वो प्लास्टोसियानिन के पास आ गया, ठीक है। तो प्लास्टोसियानिन ये कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे ल्यूमेन में प्रेजेंट है, ठीक है। ये है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस और एक मतलब आप नोट डाउन कर लो, इसमें कॉपर आयन प्रेजेंट है, ठीक है, कॉपर आयन प्रेजेंट है प्लास्टोसियानिन में और ये वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है, और ये है हाइड्रोफिलिक, वेरी गुड। तो प्लास्टोसियानिन क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ना फोटोसिस्टम 1 के पास लेके जाता है, ठीक है। फोटोसिस्टम 1 में भी हमारा बाहर से लाइट दिखता है जो कि है 700 नैनोमीटर का, ठीक है। यहाँ पे हमारा फोटोसिस्टम 2 पे रेड लाइट दिखता है, बट फोटोसिस्टम 1 पे क्या होता है, फार रेड लाइट दिखता है, ठीक है। तो प्लास्टोसियानिन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है फोटोसिस्टम 1 पे। फोटोसिस्टम 1 फिर क्या करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है A0 को, ठीक है। A0 हमारा एक मॉडिफाइड क्लोरोफिल पिगमेंट है, ओके। तो फिर ये क्या करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है A1 को। A1 है यहाँ पे हमारा मॉडिफाइड विटामिन K, ओके। फिर ये A1 क्या करता है ना, आयरन सल्फर X को अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, ठीक है। आयरन सल्फर X आयरन और सल्फर को लेके ये कंपाउंड मतलब बना है, ठीक है। तो फिर ये क्या करता है, हमारा आयरन सल्फर A को देता है, A से फिर जाता है आयरन सल्फर B को। तो A से ना ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे थाइलाकोइड मेम्ब्रेन से बाहर जाते हैं। तो बाहर हमारा क्या प्रेजेंट है, फेरेडॉक्सिन, ठीक है। ये फेरेडॉक्सिन क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, इसको हम बोलते हैं फेरेडॉक्सिन को टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्योंकि ये मतलब जो प्रोसेस है में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, दैट्स व्हाई इट्स नेम एज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये माइट भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ओके। तो फिर ये क्या करता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसको देता है FNR को। FNR क्या है, फेरेडॉक्सिल NADP रिडक्टेज। रिडक्टेज यानी कि ये एंजाइम है और इसका फंक्शन क्या है, ये 2 NADPH को 2 NADP में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल गया हमारा 2 NADP। कैसे जनरेट हुआ, फिर फोटोसिस्टम 2 से कैसे फोटोसिस्टम 1 पे पहुंचा और फिर फोटोसिस्टम 1 से कैसे वो बाहर पहुंच के एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, ये गया प्रोसेस। तो अभी मैं मतलब क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो सब हमारे हाइड्रोजन एटम्स है और आपके प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन का अभी क्या। तो वो प्रोटॉन क्या करते हैं ना, सारे देखो ये 4 प्रोटॉन, ये 4 प्रोटॉन और इस रिएक्शन के 4 प्रोटॉन। सो कहाँ से आए ये जो 4, ये तो पता चल गया कैसे आए, वाटर ब्रेक हुआ, तो ये हमें पता था कि ये 4 हाइड्रोजन हमारे वाटर से आए। पर ये जो 4 हाइड्रोजन है या फिर प्रोटॉन से, ये कहाँ से आए। तो एक बात याद रखना हमेशा, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, ठीक है, जब हमारे प्लास्टोक्विनोन 2 इलेक्ट्रॉन देता है, उसके साथ वो ल्यूमेन में 4 हाइड्रोजन छोड़ता भी है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 4, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे, 2 2 4, तो हमारे 8 हाइड्रोजन, हमें हाइड्रोजन और प्रोटॉन मिले, 8 प्रोटॉन और यहाँ पे 4, कितने टोटल 12 प्रोटॉन्स मिले, ठीक है। तो टोटल 12 प्रोटॉन्स ये जो हमारा है एटीपी सिंथेसिस, उसके थ्रू जाके 3 एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो कि फिर एडीपी और पीआई में निकल जाता है। आप समझे, ये जो हमारा प्रोटॉन था, प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया हमारे एटीपी में और जो इलेक्ट्रॉन था वो हमारा कन्वर्ट हो गया एनएडीपी में। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, एनर्जी ही मिला ना। एटीपी तो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है और NADPH इज इक्विवेलेंट टू 2.5 ATP और इन न्यू टर्म्स 3 ATP,
राइट। तो हमें ये नॉन साइक्लिक रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, तो ये रिजेंबल करता है कुछ न कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के ETS से, ठीक है। और इससे हमें क्या मिलता है, एटीपी भी मिलता है। प्लांट को कितने एटीपी मिले, 3 एटीपी मिले और 2 NADP मिले, और उसके साथ प्लांट को एक ऑक्सीजन मिला जो कि वो बाहर निकाल देगा, जिसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो यही था आप लोगों का होल लाइट रिएक्शन। तो मैं फिर से एक बार इसको समराइज कर देती हूँ, लाइक इन अ सिंपल जनरल वे। फर्स्ट क्या होगा कि लाइट गिरेगा, ठीक है, रेड वेवलेंथ वाला लाइट आएगा, वो फोटोसिस्टम 2 पे गिरेगा। जब फोटोसिस्टम 2 पे गिरेगा ना, फोटोसिस्टम 2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है। आप समझ लो ना, ये चैरिटी हो रही है, ठीक है, एक चैरिटी फंक्शन हो रही है। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने, XYZ ऑर्गेनाइजेशन ने एक चैरिटी फंक्शन क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें वो जो 2-2 इलेक्ट्रॉन है ना, सपोज वो 2-2 इलेक्ट्रॉन को आप 2-2 रुपीज पकड़ लो, ये 2-2 रुपीज इन्वेस्ट करके बाद में लाइक बहुत सारे ब्लेसिंग्स पाते हैं। तो हियर हमारा ATP और NADP आप लोगों का ब्लेसिंग है, और ये है चैरिटी इवेंट। तो क्या हुआ, पहले चैरिटी इवेंट में तो लाइट गिरा, स्टेज वगैरह सब रेडी है, तो पहले लाइट गिरेगा। लाइट तो मतलब ऐसे तो नहीं है कि सन मतलब कुछ बहुत सारा ज्यादा लाइट डाल दिए, क्या डाल दिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। हमारा पहला 680 नैनोमीटर का लाइट पहले गिरेगा। फोटोसिस्टम 2 क्या है, वो है हमारा चीफ गेस्ट। तो जब उसके ऊपर गिरा लाइट, तो वो 2 शब्द कहता है, ठीक है। तो वो 2 शब्द है हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 शब्द अपने मतलब जो ऑडियंस है ना उनको सुनाता है, मतलब थोड़े वो अपने कुछ वर्ड्स डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो वो है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन। तो फिर क्या करेगा, थियोफाइटिन क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। सपोज ये है हमारा ऑडियंस ग्रुप 1, ऐसे ऑडियंस बैठते हैं ना फ्रंट रो में, मतलब सारे VVIPs बैठते हैं। तो थियोफाइटिन, वो हमारे प्लास्टोक्विनोन A B, वो सब हमारे VIPs हैं, ठीक है। फिर उसके पीछे क्या बैठता है, मीडिया बैठते हैं, जो लोग सब मीडिया से होते हैं। फिर उसके पीछे नॉर्मल ऑडियंस बैठते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, थियोफाइटिन था हमारा VIP VVIP गेस्ट। तो उसने वो 2 वर्ड्स अपने पास रखे, कुछ टाइम के लिए रखे। फिर उन्होंने क्या किया, वो 2 वर्ड्स अपने साइड वाले या फिर अपने आगे वाले जो कि VIP हैं हमारे प्लास्टोक्विनोन A, उसको डोनेट कर दिए। फिर उसने क्या किया, प्लास्टोक्विनोन B को डोनेट कर दिया। पर ये थे हमारे थोड़े मतलब क्या, वो ज्यादा मतलब समझदार थे, या फिर वो बहुत बड़े लेवल के VIP थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि ये इतने से बात से तो मुझे नहीं होगा, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा अपना काम करने के लिए। तो फिर वो क्या करते हैं ना, साइड से 2-3 YouTube वीडियोस देख लेते हैं, ठीक है। तो वो जो 2 YouTube वीडियो वो देखते हैं ना, तो वो है हमारा 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तब ये फुल्ली रिड्यूस फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारा नॉलेज तब वो गेन कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, ये वो जो ज्ञान है हमारा, उसको ट्रांसफर करते हैं जो बैठे होते हैं हमारे मीडिया जो ग्रुप है उसके पास। तो मीडिया तो कंस्टेंट बैठी रहती है, वो ना इधर जा रही है ना वो उधर जा रही है। वो क्या कर रही है, जो VIPs हैं और वो जो मतलब पीछे के ऑडियंस, उनको ऐसे सेपरेट कर रही है, वो ऐसे बीच में बैठी हुई है, ठीक है। और आप कह सकते हो कि कनेक्ट कर रही है, ठीक है। फिर क्या होता है, वहां पे वो जो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो उसको फिर से डोनेट करते हैं, किसको, प्लास्टोसियानिन को। प्लास्टोसियानिन क्या है, ये है हमारे कनेक्टिंग लिंक, जो कि कनेक्ट करता है हमारे जो चीफ गेस्ट थे उनको और हमारी जो ऑडियंस है उनको, फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 को। वो फोटोसिस्टम 1 से 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, उसको लेके फोटोसिस्टम 2 से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये प्लास्टोसियानिन क्या करता है, उसको लेके फोटोसिस्टम 1 के पास जाता है, ठीक है, कनेक्ट कर लिया। फिर फोटोसिस्टम 1 से ऑडियंस अपने रिलेटिव्स हो गए, अपने बच्चे हो गए, सबको थोड़ा थोड़ा वो जो 2 शब्द वो सुने थे, वो सबको वो दो शब्द पास करते हैं। कैसे पास किया, A0 को पास किया, A1 को, देन आयरन सल्फर X को, आयरन सल्फर SA को, आयरन सल्फर SB को। तो ऐसे जाके वो निकल जाते हैं, वो इवेंट से निकल जाते हैं बाहर, इवेंट के बाहर, मतलब थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के बाहर, स्ट्रोमा में, ठीक है, मतलब अपने शहर में स्ट्रोमा में वो जो है हमारा पैराडॉक्सिन, उसको 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। फिर वो क्या करता है, हमारा FNR को देता है 2 इलेक्ट्रॉन। आप पैराडॉक्सिन को समझ लो एक नॉर्मल शहर है, और FNR है हमारा मेट्रो सिटी। देखो ज्ञान हमारा ना हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर से आके कहाँ पे पहुंच चुका है, मेट्रो सिटी तक पहुंच चुका है। मतलब फोटोसिस्टम 2 से आके फोटोसिस्टम 1 प्लास्टोसियानिन ये देखे, ये FNR में है। FNR में क्या होता है, 2 NADPH कन्वर्ट हो जाता है टू
NADP में हमें एनर्जी मिल गई। ठीक है, जो हमने 2 शब्द सुने थे उसको हमने मतलब सो मेनी प्रोसेसेस से जाके बहुत सारे लोगों के पास आके फाइनली उसका कुछ आउटकम निकला, कुछ ब्लेसिंग्स मिले या फिर उसका कुछ अच्छा काम हुआ। ठीक है, ये जो सब प्रोसेस हुआ चैरिटी में, क्या कुछ मनी कलेक्ट होते हैं, ये जो सब मनी है हमारा प्रोटोन, ये जो प्रोटोन सब है ये जाएंगे और एक फंड के पास एटीपी सिंथेटेज, उसमें क्या होगा, ये जो मनी है वो यहाँ पे इन्वेस्ट होगा, इन्वेस्ट होके क्या मिलेगा, हमें एनर्जी मिलेगी जो कि हमारे ही काम आएगी, मतलब प्लांट की काम आएगी। समझ गए? ये थे हमारा होल नॉन साइक्लिक रिएक्शन। तो आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस 1-2 बार ये स्लाइड को पॉज करके देखना है, 1-2 बार अपने पेन और पेपर पे अपने ही कॉपी पे ड्रॉ करना है और बस काम खत्म। नॉन साइक्लिक रिएक्शन से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। आप देख लीजिए, क्वेश्चन जाके कर लीजिए, या जब ये सीरीज खत्म हो जाएगा हम लोग इस सीरीज के रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, बट तब तक के लिए आप थोड़े क्वेश्चंस कर लीजिए। आप जो भी एग्जाम से बिलोंग करते हो, बीएससी में हो या फिर एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एमएससी में हो, अपना क्लास टेस्ट है जो भी है, आप इस वीडियो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। जिन लोगों को प्लांट फिजियोलॉजी बहुत मतलब डिफिकल्ट लगती है उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने फीडबैक्स भी दीजिए, और हम कैसे और अच्छे तरह से मैं आपको पढ़ा सकती हूँ वो फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।